Hello and welcome students to lecture number 3 to this Heron's formula for 9th class. हमने पहली एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस किए हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 says sides of a triangle are in the ratio of 12, 17, 25. एक ट्राइंगल दिया गया है, इसके जो साइड्स है वो किस रेशो में है? 12, 17 एंड 25. ये इस रेशो में है. हम कंसिडर करेंगे लेट साइड्स बी 12x 17x. सपोज इनमें कॉमन रेशो जो है दैट इज x. लेट साइड्स बी 12x 17x एंड 25x. लेकिन ये दिया गया है जो इसमें पेरीमीटर है दैट इज 540. पेरीमीटर इज गिवन. पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 centimeters. Perimeter means इनका sum that is 12x plus 17x plus 25x is equal to 540. इनका sum जो आता है that is 54x is equal to 540, which implies x is equal to 540 divided by 54. This is equal to 10. x का value जो है that is 10. Hence जो sides है therefore sides of a triangle are 12x के बदले क्या है? 12x is equal to 12 into x के बदले 10 that is 120 सेंटीमीटर. एक है 120 सेंटीमीटर. दूसरा क्या है? 17x. this is 17 into 10 that is 170 सेंटीमीटर. 170 सेंटीमीटर and next is 25x. this is 25 into 10. this is 250 centimeter. This is 250 centimeter. Now we have to find its area. For that S is equal to दिया गया है. अगर पेरीमीटर दिया गया है 540, S किसके बराबर आएगा? 540 divided by 2 that is equal to 270. S is equal to 270. Then we can say area किसके बराबर आएगा? Yes, area is equal to under root of s into s minus a, s minus b, s minus c. और s का वैल्यू है यहाँ पे 270, which implies area is equal to 270 into 270 minus 120, 270 minus 170 and 270 minus 250. This is equal to 270 into 150 into 100 into 20. 270 into 150 into 100 into 20. That means जब हम ये कैलकुलेट करेंगे this is 816 times 0 and जब इसका रूट हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of triangle. Now moving to question number 6. Question number 6 is an isosceles triangle has perimeter. An isosceles triangle has perimeter 30 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 6. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. लेट दैट बी ए बी सी. इसका जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है. जो इक्वल साइड्स है ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं. जो इक्वल साइड्स है उनका जो मेजरमेंट है दैट इज 12. ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर. मान लीजिए तीसरा साइड x है, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है. लेट थर्ड साइड बी x. सिंस पेरीमीटर इज इक्वल, पेरीमीटर दिया गया है किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज पेरीमीटर मीन्स 12 plus x. इन तीनों साइड्स का सम लेना है दैट इज इक्वल टू 30. दिस इज 24 plus x is equal to 30. इसका मतलब है x का वैल्यू जो आएगा
30 minus 24 that is equal to 6 सेंटीमीटर, ये 6 है। अब सेमी पेरीमीटर किसके बराबर आएगा? पेरीमीटर 30 है, दिस इज 30 by 2 is equal to 15 centimeters. Therefore area of triangle using Heron's formula, that is S into S minus A, S minus B, S minus C. S का वैल्यू क्या है? 15 into 15 minus A 12, 15 minus 12, 15 minus 6. This is 15 into 12. 15 minus 12 is 3, yes. 15 minus 12 is 3, yes. 15 minus 6 is 9. We can say this is 15 into 9 into 9, or root 15 into 9 square, square root cancel. This is 9 root 15 centimeters square. This is the area of triangle, isosceles triangle. Now moving to exercise next, that is 11.2. 11.2. Moving to next exercise, that is exercise 11.2. Question number first says, a park is in the shape of a quadrilateral ABCD. A, B, यहां से लेंगे हम, दिस इज A, B, C, D. ये पार्क एक क्वाड्रिलेटरल शेप में है, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन एंगल C जो है वो 90 है। AB इज इक्वल टू 9, ये 9 दिया गया है, 9 सेंटीमीटर्स। BC इज इक्वल टू 12, दिस इज 12 सेंटीमीटर, एंड AD is equal to 8, AD is equal to 8 centimeter, and CD is equal to 5 meter. Sorry, मीटर में है ये सारे। एंड और क्या दिया गया है? How much area does it occupy? We have to calculate its area. हम ज्वाइन करेंगे BD को, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। Hypotenuse square will be equal to base square plus perpendicular square. In triangle solution हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, then we add them, so that will be the area of park. In triangle BCD, by Pythagoras theorem, by PG, by applying PGT, we can say this BD square is equal to 5 square plus 12 square. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. BD square is equal to 5 square is 25, 12 square is 144. This is equal to 169, which implies BD is equal to root 169, that is equal to 13 centimeters. 13 meters. ये जो है ये 13 आएगा। चूंकि जब हमें राइट ट्राइंगल दिया गया है, ये एक 12 है और 5 है और ये 13 है, वी कैन कैलकुलेट द एरिया बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला, बेस एंड हाइट। हाइट इसमें परपेंडिकुलर दी गई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस क्या है? यहाँ पे हम बेस लेंगे 5 और हाइट इज 12। 2 1 is R, 2 6 is R, this is 30 meter square. इसका एरिया आएगा। Area of this is 30. Now for triangle ABD, इस ट्राइंगल के लिए हम हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। S किसके बराबर आएगा? सेमी पेरीमीटर। दिस इज 8 plus 9 plus 13 divided by 2. इन तीन साइड्स का सम, this is 30 divided by 2, that is equal to 15 meters. And then area of triangle ABD is equal to under root of S into S minus A, S minus B, S minus C. This is equal to S is 15,
into 15 minus 8 into 15 minus 9 into 15 minus 13. This is equal 15 into 7 into 6 into 15 minus 13 is that is that is 2. By calculating this, this comes to be that is root of 1260. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे that is 35.5 मीटर स्क्वायर, इसका 35.5, इसका मतलब जो है एरिया ऑफ पार्क जो आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ पार्क किसके बराबर आएगा 30 प्लस 35.5, 30 plus 35.5. This is equal to 65.5 meter square. This is the area of park. Hope you understand. Moving to question number 2. Question number 2 में क्या है? Question number 2. Find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is 3, BC is 4, CD is equal to 4 and DA is equal to 5, AC is equal to 5. बहुत easy है. Question number 2. ABCD एक quadrilateral है. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. इसमें डायमेंशंस दी गई है. ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है एंड बी सी जो है बी सी इज 4 सेंटीमीटर्स, दिस इज 4 सेंटीमीटर्स एंड सी डी जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है एंड डी ए जो है और ए डी जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर्स एंड देन ए सी भी दिया गया है. ए सी इज 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है. ए सी इज 5 सेंटीमीटर्स. बहुत इजी है. पहले हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे एरिया, फिर इसके लिए, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे. इसका सॉल्यूशन है फॉर ट्रायंगल ACD एस किसके बराबर है सम. दिस इज 5 plus 4 divided by 2. दिस इज 14 by 2 that is 7. 14 by 2 is 7 and area of triangle ACD that is equal to under root of s into s minus a, s minus b into s minus c. s का वैल्यू क्या है 7 into 7 minus 5 and 7 minus 4 that is equal to root of 7. 7 minus 5 is 2, 7 minus 5 is 2, 7 minus 4 is 3. जब हम ये कैलकुलेट करेंगे this comes to be 7 2s are 14, 14 2s are 28, 28 into 3 is that is yes 84 का जो रूट आता है that is 9.2 स्क्वायर सेंटीमीटर. फॉर ट्रायंगल इसके लिए 9.2 आ गया. फॉर ट्रायंगल यस ABC S किसके बराबर आएगा 3 plus 4 plus 5 divided by 2 that is equal to 12 by 2 that is 6 centimeters. S का वैल्यू जो आ गया that is 6. Therefore area of triangle ABC का एरिया फाइंड करेंगे that is under root of S into S minus A, S minus B, S minus C. This is S के बदले हम 6 लिखेंगे. 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 5. This is 6 into 3 into 2 into 1. This is 36. इसका जो रूट है that is 6 centimeter square. Therefore area of triangle ABC is 6. इसका जो एरिया है that is 6. इनको ऐड करेंगे 10. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to 9.2 plus 6 that is 15.2 centimeter square. 9.2 को ऐड करेंगे 6, टोटल एरिया जो आएगा that is 15.2 centimeter square. Now question number 3. Moving to question number 3 of question number 3 जो है आप खुद ट्राई कर लेना. एक एरोप्लेन बनाया गया है, उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है.
क्वेश्चन नंबर 4 सेज, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज a triangle and a parallelogram have the same base. एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ए बी सी एक ट्रायंगल है. मान लीजिए ए सी डी ई पैरेललोग्राम है. इनकी जो बेस है वो सेम है. इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28, 30. 28 इसकी बेस है, 26 एंड 30 यहां से है. ट्रायंगल तीन साइड्स के दिए गए हैं. ट्रायंगल के तीन साइड्स दिए गए हैं 26, 30 एंड 28. मान लीजिए जो बेस इनमें कॉमन है वो AC है, वो 28 दी गई है. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. सपोज EF इसकी जो हाइट है मान लीजिए वो H है. हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना है. ये दिया गया है. इनका जो एरिया है वो इक्वल है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. फॉर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के लिए S का वैल्यू क्या आएगा? दिस इज 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2. ये हमें क्या फाइंड करना है? दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 30, दैट इज 50, दैट इज 70, 84 by 2, that means this is 42. S is 42. Area of triangle ABC is equal to under root of S into S minus A, using Heron's formula S minus B, S minus C. S is 42. This is 42 minus 26, 42 minus 28, 42 minus 30. This is equal to 42 into this is 16, this is 14, this is 12. जब ये कैलकुलेट करेंगे, this comes out to be under root of 112896, under root of 112896. जब हम इसका रूट फाइंड करेंगे, that is 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? बेस इंटू हाइट. दिस इज बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है? 336. बेस क्या है यहाँ पे? 28. हाइट H है. दिस इज 336. हाइट का वैल्यू 336 डिवाइडेड बाई 28 एंड दिस इज इक्वल टू 12. दिस इज 12 सेंटीमीटर. हाइट जो पैरेललोग्राम की आएगी वो 12 के बराबर है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज रोम्बस शेप्ड फील्ड. रोम्बस मीन्स जिसमें हर एक साइड इक्वल होता है. रोम्बस और स्क्वायर में ये फर्क है. स्क्वायर में हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है. रोम्बस में 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं है. एंड रोम्बस में हर एक साइड इक्वल होता है. एक फील्ड है. फील्ड की जो शेप है ABCD, ये रोम्बस है और इसका हर एक साइड जो है that is given 30 meters. 30 मीटर. ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30. एंड इट इज लॉन्गर डायगोनल इज मान लीजिए लॉन्गर डायगोनल है. दिस इज 48 मीटर्स. ये 48 मीटर्स है. एंड हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास वहां पे ग्रेज करती है 18 काउज. 18 काउज वहां पे घास खाती हैं. अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक काउ के लिए कितना फीड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है.
पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर डिवाइड उसको 18 से करेंगे, वी विल गेट द आंसर। फॉर ट्राइंगल, जो इसका एरिया होगा वो इसका भी होगा, साइड्स इक्वल है ट्राइंगल के। फॉर ट्राइंगल ABC, ABC, S किसके बराबर आएगा? 30 + 30 + 48 divided by 2, that is equal to 108 divided by 2, this is 54. Therefore, area of triangle ABC, area of triangle ABC is equal to under root of S into S minus A, S minus B, S minus C. This is equal to 54 into 54 minus A is 30, 54 minus 30, 54 minus 48. This is equal to 54 into 24 into 24 into 14. 54 into 24 into 24 into 6. And this comes out to be, this is equal to 186624, 186624. जब हम इसका रूट देखेंगे, दिस इज 432 मीटर स्क्वायर। एक का जो एरिया है वो 432 आ गया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ACD इसका भी यही आएगा 432 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड कितना है? दिस इज 432 + 432, दिस इज 864 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ फील्ड जो है दैट इज 864, दैट इज, ये टोटल एरिया ऑफ फील्ड अवेलेबल है कितनी काउज के लिए? 18 काउज के लिए। एरिया ऑफ फील्ड अवेलेबल फॉर 18 काउज, 18 काउज, ये 18 काउज के लिए है 864, implies एरिया ऑफ फील्ड अवेलेबल फॉर 1 cow is equal to 864 divided by 18, that is equal to 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर। एक काउ के लिए 48 मीटर स्क्वायर फील्ड अवेलेबल है। होप यू अंडरस्टैंड।